Only one student till now, Mayank Yadav. Good afternoon, sir. Okay, let's wait for other students. Only two students. इतना बोलने के बाद भी सुबह केवल दो बच्चे आए हैं. मतलब ही नहीं है सिलेबस से अपनी. So you can cut the syllabus if the syllabus is much. बेटा फिलहाल तो कराई रही जितना खाना है. देखो आगे जाके देखेंगे. What is going on in other subjects? Revision is going on, or what is going on in other subjects? Sir, and SST syllabus done. SST only one chapter is done. Sir, we have done the chapter, but we have done the question. We have to do question answers of that chapter. English had done. Hindi literature has done. Okay. So Computer done. revision is going on. What is going on? Sir, revision. Revision. Okay. Ashish Yadav. Okay, let's continue with this chapter. We have already done till question number 3.
क्वेश्चन 4 है आपका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस एंड द लेंथ इज दिस, a boy runs around it. Okay, I will do it on the board. So 20.8 exercise 28 question 4. Area of a rectangular field is 3,584 meters square. Area दिया हुआ है rectangular field का 3,584 meters square. This is the area. Then the length of the rectangle is 64 meter. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बॉय है जो कि बॉय इज टेकिंग राउंड्स ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ राउंड्स लगा रहा है बॉय, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द ब्रेथ, हमें ब्रेथ पता होनी चाहिए पेरीमीटर। so let us find the breadth first. Breadth is equals to area of length, so b equals to 3584 divided by 64। तो इसको 8 से डिवाइड करके आपको मिलेगा, 8 से काटना 8 4 32 38 4 38 4 बताया 64 8 448 अपॉन 8, फिर से 8 से काट दिया इसको, तो you get breadth equal to, फिर से 8 से काट दिया तो 5 and 6, 56 meter. This is the breadth of the rectangle. हमको breadth मिल रही rectangle की। Now directly when you divide 3,084 by 64, you get 56. Okay. 56 meter is the breadth of the rectangle. Now you can find the perimeter of the rectangle, क्योंकि अल्टीमेटली हमको जो फाइंड करना है, हमें क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय है जो कि रनिंग कर रहा है फील्ड के चारों तरफ, दैट मींस पेरीमीटर तो चाहिए चाहिए। तो फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 into p, तो p इक्वल्स टू 40 meter, 5 meters is 240 into 64, sorry 56 क्या 40 मीटर, sir, 240 meter 240 meter। So this is 70 plus 50, 120 into 240, 240 meter is the perimeter of the field। diameter. field का perimeter हमको मिल गया। So now we will multiply it by 5. So this boy has, first of all, this boy has taken how many rounds around the field? 5. 5 rounds। 5 times इस field के चारों तरफ वो round लगा, जो भी rectangular field है उसके चारों तरफ उसको कितने राउंड्स लगाने हैं? He has to take 5 rounds। ओके, तो 5 राउंड्स में कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड करना है अल्टीमेटली। So first of all, we will have to find कि how much distance he has covered in 5 rounds. So distance covered है आपको मिल रहा है, Then we will convert it into kilometers. distance equal to 240 into 5, 240 into 5 यानी कि 1200। Sir, 1200 meter. Yes, 1200 मीटर आ गई इसकी टोटल डिस्टेंस जो बॉय ने कवर कर दी। अब स्पीड आपको गिवन है, स्पीड
So we have to come kilometer. So the speed that is given, boy किस speed से running कर रहा है, he is running at a speed of 6 Kilometer per hour. 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर, आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, you have to multiply by 5/18। तो 6 into 5/18, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम कन्वर्टिंग द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहा हूँ। 5/3. ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम कन्वर्टिंग द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द डिस्टेंस इज गिवन इन मीटर्स। डिस्टेंस हमको किस में गिवन है, मीटर्स में गिवन है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहा हूँ। So if you simplify this, you will get 6 को कट कर देंगे 5/3 मीटर पर सेकंड। तो 5/3 मीटर पर Meter. सेकंड। नाउ द टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको फाइनली क्या निकालना था कि कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। तो फाइनली द टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही फॉर्मूला होता है टाइम का। So don't know. T divided by S, V divided by S, distance upon speed, याद है फॉर्मूला। So V is, what is the distance, 1200 divided by 5/18। So not reciprocal. Now this is 1200 multiplied by 18/5। So it will be 5. So it's 5/3. Sorry, 5/3, I'm sorry, 5/3, जल्दी से करते हैं। 5/3, so 3/5 is equal to 3/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 240 into 3, that is 720 seconds। 720 seconds, 720 seconds में टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा। बट वी ऑल्सो नो हाउ टू कन्वर्ट सेकेंड्स इन मिनट्स, मिनट्स में चेंज कर लीजिए बाय डिवाइडिंग इट बाय 60। 60 से डिवाइड कर लोगे तो कितना मिलेगा, 12 मिनट्स आंसर आ जाएगा, 12 minutes। So your final answer is 12 minutes। Clear? Okay, sir. Yes, sir. Note down the question. Done. Sir, done. Very good. Varinder is the North Campus Plus. Veranda is 40 meters. Okay, next question. I hope you all have written this in your copies. Question number 5.
Question number 5. Question 5. It is a veranda is 40 meter long and 15 meter broad. So veranda is in the shape of rectangle. इसको कुछ ऐसा veranda ये क्या है 15 meter long, sorry 40 meter long and 15 meter broad. So 40 meter is the length of it, 15 meter is the breadth. 40 meter is the length and 15 meter is the breadth of the veranda. और इसमें आपको क्या करना है स्टोन्स लगाने हैं. स्टोन्स मतलब टाइल्स. टाइल्स की जगह इन्होंने जो वर्ड यूज करा है दैट इज स्टोन्स, वो इसमें लगाने हैं. और स्टोन्स की जो डायमेंशंस है वो भी आपको गिवन है. सो दैट इज गिवन 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर. decimeter. तो स्टोन्स ऐसे करके लगाने हैं इसमें. जैसे ये है, ये स्टोन्स लेके मैं लगा करके ऐसे करके आपने देखा रूम में टाइल्स लगे होते हैं, तो इस तरीके से पूरे रूम में टाइल्स लगाने इन दिस मैनर, पूरे रूम में लगाने. so you will have to tell that कि how many stones या फिर how many tiles will be used to find how many tiles will be used to cover the whole veranda. पूरे veranda में कितने tiles यूज हो जाएंगे हमारे. तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, निकालने का तरीका बहुत इजी है. You will find the area of the veranda, find the area of one stone या फिर one tile, और veranda के एरिया को एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे. हमको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगे. ठीक है. सो टोटल एरिया ऑफ veranda डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, डिवाइड करके हमको नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइल की जो डायमेंशंस है वो हमको यहाँ पे 6 डेसीमीटर बाय 5 डेसीमीटर दी है. तो वो हम कन्वर्ट कर लेंगे. मैं यहाँ पर एक टाइल tile is also rectangular in shape, 6 decimeter by 5 decimeter. ये है tile. तो 6 decimeter को अगर चेंज करेंगे मीटर से कितना आएगा 0.6. और 5 को जब आप चेंज करेंगे मीटर में तो कितना आएगा 0.5. डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 10. ठीक है. तो नंबर ऑफ टाइल या फिर नंबर ऑफ स्टोन्स equal to area of veranda upon area of each stone. Area of veranda upon area of each stone. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो एरिया ऑफ veranda 40 into 15 600 meter square. divided by 0.6 into 0.5. वो ये 0.6.5 है, दोनों जगह से डेसिमल 0.30. ऊपर न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यू विल गेट 40 into 15 into 100
divided by 6 into 5. Okay, divided by 6 into 5. So when you simplify this, you will get कितना मिलेगा आपको? Sir, 5 will be divided by 15. 2000. 2000 stones. So when you simplify this, you will get 2000 stones as the answer. Clear? आपका आंसर आ जाएगा 2000 stones. Sir, but I have take the area veranda first 600 meter square. Sorry? Sir, but I have find out the area veranda 600 meter square. Sir, now can I do like this now? Number of stones is equal to 600 upon 0.30. मेरा सुनो, आप अलग अलग दोनों चीजों का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, बट दैट विल बी डिफिकल्ट. डायरेक्टली ऐसे करो जैसे मैंने करा, देखो कितनी इजीली आंसर आ जाए. एरिया ऑफ वरांडा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बीच स्टोन. आपको यहाँ पर एरिया फाइंड भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट ये जो आपका एक तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000. ओके. Okay, sir. Sir, done. वेरी गुड. Let's move on to the next question, which is question number 6. Start करते हैं. Question 6. Find the cost of carpeting a room 13 meter by 9 meter. एक रूम में आपको कारपेट लगाना है जिसकी डायमेंशंस आपको 13 मीटर बाय 9 मीटर गिवन है. With a carpet of width 75 centimeter at the rate of rupees 105 per meter. तो पहले तो आप यहाँ पर लेंथ ऑफ कारपेट जो चाहिए वो फाइंड करेंगे. लेंथ ऑफ कारपेट कैसे मिलेगी? पहले तो रूम का एरिया फाइंड कर लेते हैं. द एरिया ऑफ द रूम जिसमें आपको कारपेट लगाना है. ऑब्वियसली कारपेट लगाने हैं रूम के अंदर, तो ऑब्वियसली हमको रूम का एरिया पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ रूम यहाँ पर निकालने हैं. एरिया ऑफ रूम equal to 13 into 9 is equal to 117 meter square. This is the area of the room. ये हमको रूम का एरिया मिल गया जिसमें हमको कारपेट लगाना है. ओके. नाउ व्हाट? कारपेट की विड्थ हमको पता है. कारपेट जितना लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पर यूज होगा वो हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो जितना रूम का एरिया उतना ही एरिया मुझे कारपेट का भी चाहिए. एम आई राइट और नॉट? जितना रूम का एरिया है उतना ही एरिया का कारपेट तो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? तभी तो पता चलेगा कि कितना कारपेट रिक्वायर्ड है. सो एक तरीके से ये कारपेट का एरिया मुझे पता चल गया. कारपेट की ब्रेथ भी पता है, विड्थ भी दी हुई है, विड्थ ऑफ द कारपेट.
विड्थ ऑफ कारपेट कितनी गिवन है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। विड्थ ऑफ कारपेट है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर आपको विड्थ ऑफ कारपेट गिवन है, व्हिच इज इक्वल टू 0.75 मीटर। मीटर में चेंज कर ली मैंने, 0.75 मीटर हो गई विड्थ ऑफ द कारपेट। अब मुझे लेंथ ऑफ कारपेट फाइंड करनी है। मुझे कारपेट का एरिया भी मालूम है कितना चाहिए मुझे, कारपेट कारपेट की विड्थ भी पता है। क्या मैं लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ? तो लेंथ ऑफ द कारपेट एरिया अपॉन विड्थ, वन 117 upon 0.75, 117 upon 0.75. Okay, so length of carpet इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगी 117 into 100। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डेसिमल हटा कर 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ग्रेटर में 75 to 100। डेसिमल हटा दिया मैंने, न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। काट करने के बाद इसको 3 आ जाएगा। 117 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 3 को काट लीजिए, 117 39 ओके 39 बोला, यस 39 into 4 6 and 12 to 6 15 156 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट मेरे को चाहिए। इतना लेंथ ऑफ कारपेट मेरे को चाहिए, 156 मीटर लेंथ ऑफ कारपेट। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट। कारपेट की टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेट, आपको कारपेट का रेट क्या गिवन है? इफ यू रेट कितना गिवन है, 105 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट है कारपेट की। 1 मीटर को कारपेट अगर आप परचेज करते हैं देन इट इज रुपीज 105। उसके लिए आपको 105 रुपीज पे करना है। बट टोटल लेंथ ऑफ कारपेट मेरे पास कितना है, 156 मीटर की लेंथ है। तो 156 into 105 मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट मिल जाएगा। जितने भी बच्चे आज एब्सेंट है बेटा, जो चाहे उन्होंने फर्स्ट पीरियड में अटेंड किया हो, आई विल मार्क देम एब्सेंट इन द, जो पिछले पीरियड में उन्होंने क्लास अटेंड करी थी उनको भी मैं एब्सेंट लगा दूंगा। सिर्फ आप लोगों को प्रेजेंट लगाऊंगा जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं। 156 into 105 156 into 105, ये मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कॉस्ट कितनी आ रही है टोटल। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग? Sir, answer is 16,380. 16,380। Are you sure? 16,000, how much? Sir, 16380. 16380. Note it down. And question 7 is of the same type. Try the question number 7. Question number 7 try करिए, same type का।